Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Prime Minister Narendra Modi affirms the economy is returning back to normalcy after the unlock, says experiences of all states will be discussed for future roadmap against COVID-19. India receives the world's 9th largest foreign investment in 2019 and domestic equity indices climb more than 1%. Global stocks zoom after Fed's corporate bonds buying plan announcement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी से निपटने के भावी रोडमैप की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों के अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा भागीदार बना और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली 23 प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से कॉरपोरेट बॉन्ड खरीद योजना की घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल। Prime Minister Narendra Modi has affirmed that the economy is returning back on track on normalization after 2 weeks of the first phase of nationwide unlock. In his opening remarks during his interaction with the chief ministers of 21 states and union territories through video conference, Mr. Modi said that the views and experiences of all states and union territories will be discussed to strategize future roadmaps of nation's fight against the global pandemic. He affirmed that the preemptive and proactive response of the government placed the country in a better position to address the COVID challenge. He highlighted the early preparedness approach which helped the country to chalk out measures to save many lives. Prime Minister said that even a single loss of life due to COVID is saddening, and the nation should not lower its guard even during the unlock. Prime Minister Narendra Modi said the green shoots of rejuvenating economy visible after 2 weeks into Unlock 1 emboldens the belief that through concerted efforts of all states, the country can re-stabilize the economy. Mr. Modi highlighted the increased sale of fertilizers, larger year-on-year sowing of kharif crops, digital payments in retail sector as few benchmarks, which he said showed the country drifting into the pre-COVID economic track. Prime Minister Modi also mentioned the historic reforms introduced by the government, including to provide automatic collateral-free loans to MSMEs and to boost agrarian economy as measures which will ensure creating of a strong and sustained demand in the country. हमारे साथ फोन लाइन पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं और समझना चाहेंगे, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद लगभग 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही है। कितना सहमत हैं आप और किन किन क्षेत्रों में आपको ये नजर आने लगा है? मनोज, ये तो क्लियर है कि जो आंकड़े आने लग गए हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप अप्रैल और मई और जून के आंकड़े देखें तो बेरोजगारी का जो फिगर था, जो बिल्कुल डरावना एक फिगर आ रहा था,
वो काफी हद तक कम हुआ है। अभी भी बहुत चिंताजनक है। हम मुश्किल दौर से बिल्कुल पार नहीं लगे हैं और हमें बहुत मेहनत आगे करनी है, पर अनलॉक करने का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो बेरोजगारी के आंकड़ों में दिखना शुरू हो गया है। अब चैलेंज हम लोगों का जो है वो, जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा कि जो हमारी जो खरीफ की बुआई हो रही है और वो जो क्रॉप है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी पॉइंट है, क्योंकि वो अगर ठीक रहता है तो इस महामारी में हमारी जो फूड सप्लाई है, फूड सिचुएशन है और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो सेक्टर है उसको सपोर्ट मिले, उसको ग्रोथ मिले। क्योंकि मनोज, जो हमारी इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर में इसको नॉर्मलसी में लाने में थोड़ा सा हमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर और लोन्स और दूसरी चीजों, इनपुट्स की जरूरत बिल्कुल सही रास्ते में लाने का थोड़ा टाइम लग सकता है। पर अगर कृषि में अगर इस वक्त अगले कुछ हफ्तों में हम ध्यान रखें और ये ख्याल रखें कि कुछ वहाँ पे सब कुछ सही सीधा सीधा चलता रहा, तो काफी कुछ जो एक पेसिमिज्म थोड़ा सा जो आ गया था कुछ क्वार्टर्स में, वो जाता रहेगा और हम काफी कुछ लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर कर जाएंगे। Udayan, this is Kamal here. Exports are unexpectedly showing promising growth, particularly in the first week of June. The data shows that it stood at $4.94 billion, which is quite close to $5 billion in the same week last year. So what does it say about the potential recovery? Well, I'm not very sure, Kamal, what exactly is the composition of that. And sometimes what happens is, if there are things that are getting, recorded with a lag, you realize a payment and then it happens. So when we are going to see it over a couple of months, then we will be able to spot on a trend. Although it is, we can be very sure that our exports, even our imports, they are not going to do as well for obvious reasons as compared to the past. Having said that, Kamal, there's an important point that we want to, it's worth pointing out. Because of this COVID pandemic, what has happened is the things that we were getting from outside, like protective clothing and pharmaceuticals and diagnostics, because we are going to be producing it in such large numbers, that COVID economy, if you allow me to use that term, that is going to be in one area where you can expect a lot of exports happening. I would say to the tune of over 10,000 to 12,000 crores. That's one estimate. So we might be able to tap opportunities in areas which we hadn't even dreamt of in the beginning of the year. So apart from COVID actually impacting us in a very big way and in an adverse way, there are opportunities that are coming in, and Indian entrepreneurship are taking advantage of those opportunities. And pharmaceuticals is also part of that? Absolutely, Kamal, because there's going to be let's take the example of vaccines. Once the vaccines get some kind of they get approved and they get established, other countries are going to look at India to scale up those production. So whether it's remdesivir, the kind of medicine, or any other medicine that you're looking at, if you want to get that scale, India produces that these pharmaceuticals, all kinds of pharmaceuticals at very large scale. We are like a pharmacy to the world. So that is something which will get reflected. They're going to get reflected in the stocks as well. Eventually, and you will start seeing that impact happening in pharma and other stocks. Say sometime around the September ending quarter, you'll start seeing those numbers come in. उदयन, प्रधानमंत्री ने एक और क्षेत्र है जहां कह लीजिए कि स्वागत किया है कि क्लस्टर जो आधारित बाजार होंगे उनका सृजन किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को उभरने में मदद मिलेगी। किस तरह से ये क्लस्टर बेस्ड मार्केट्स होंगे और किस तरह से ये क्षेत्रीय यानी कह लें कि देश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां भी इसका लाभ होगा, इसे थोड़ा यदि आप स्पष्ट कर सकें तो श्रोताओं के हित में होगा। देखिए मनोज, जहां पे औद्योगिक उत्पादन होता है वो उस क्लस्टर पे ही होता है।
ठीक है। और कुछ कृषि पैदावार आप कुछ एरियाज में ही करते हैं, जैसे आप हॉर्टिकल्चर हैं, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में होता है, हम गन्ने की पैदावार कुछ खास इलाकों में होता है, रबर की पैदावार कुछ इलाकों में होता है, और इसके अलावा उत्पादन जैसे ऑटो क्लस्टर्स हैं। तो ये जो क्लस्टर्स हैं वहां पे आप उत्पादन तो करते हैं, पर वहां पे अगर कंजम्पशन का भी इंतजाम हो जाता है, वहां पे मार्केटिंग का भी इंतजाम हो जाता है, तो एक ऑलराउंडेड एक जो है डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप नए क्लस्टर्स बनाते हैं, जो मेरे ख्याल से वो सरकार का एक फोकस होगा, तो वहां पे भी आप सोचिए, जैसे आप औरंगाबाद, पूना के बेल्ट, आप तिरुपुर के बेल्ट्स जो हैं, उस टाइप के क्लस्टर इंडस्ट्रियल, लुधियाना के जैसे क्लस्टर्स हैं, वैसे अगर आप ज्यादा और अधिक क्लस्टर्स बनाते हैं तो नेचुरली लोगों को दूसरे इलाकों में जाके रोजगार या उद्यम लगाने नहीं पड़ेंगे, आसपास जहां पे रहते हैं वहीं पे वो लगा सकते हैं। तो ये एक और अगले कुछ महीनों में एक और चैलेंज या अपॉर्चुनिटी जैसे बोले वो हो सकता है, क्योंकि कई जो लोग जो माइग्रेट करके कई बड़े शहरों में गए थे, वो वापस अपने होम टाउन या अपने गांव में गए हैं, तो उनको कैसे आप एंगेज करेंगे। एक मनरेगा तो है ही, जहां जिसके ऊपर काफी डिमांड रहेगा, पर दूसरे प्रोग्राम्स भी आपको चाहिए होंगे जहां पे आप उनको गेनफुली आप एम्प्लॉय करेंगे। हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं जो विदेशों से आ रहे हैं और जिनके स्किल्स को एक स्किल रिपोजिटरी बनाई गई है ताकि उनके स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए। यानी कुल मिलाकर इसे हम इन अर्थों में ले कि प्रधानमंत्री पिछले लगातार कई संबोधनों में कह रहे हैं कि हमें लोकल पर जोर देना होगा, यानी स्थानीय बाजार विकसित हों, वहीं उनके खपत की व्यवस्था हो और हर क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों में भी औद्योगिक वातावरण बन सके और खपत यदि विभिन्न इलाकों में विकसित हो जाए, प्रसारित हो जाए। हाल के अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मार्केटिंग चेन, लोकल चेन बनाने की हमें आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर विकास की गति पटरी पर लौटे, उसमें इस तरह के प्रयास और खासतौर से एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो एपीएमसी में बदलाव किया गया है, इन समूह का समन्वित प्रयास किस तरह बल दे सकेगा। देखिए मनोज, ये तो कोई डाउट करेगा नहीं कि हमारे देश में जो आर्थिक प्रगति हुई है वो उसमें एक रीजनल इम्बैलेंसेस तो हैं, क्षेत्रीय जो संतुलन अब पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं। तो ये जब एक क्राइसिस, ये जो संक्रमण का जो ये जो स्थिति है, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको फिक्स करें, क्योंकि आप एक लेवल अप हो गए हैं। नॉर्मली यही चेंज अगर आप करते तो लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता कि देखिए हमारा ग्रोथ सफर करेगा। जब आपका ग्रोथ सफर कर ही चुका है तो आपको जो एक असंतुलन सा बना हुआ था क्षेत्रीय, कई जगह में कई लोगों को हमारे देश में ये शिकायत रहती है कि हमारे इलाके से फलानी चीज जाती है पर हमें कुछ नहीं मिलता। तो वो जो एक शिकायत है, जो एक आपको एक ग्रामीण या दूसरे इलाकों से जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं वहां से किसी और जगह में जाके शहरों में बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशंस में रहना पड़ता है, उस चीज को अगर कुछ हद तक भी अगर हम फिक्स करते हैं तो हमारे लिए हम बहुत आगे निकल सकते हैं। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 20% बढ़ा और यह $51 अरब पर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि दुनिया में भारत विदेशी निवेश प्राप्त करने वालों में 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि एशिया के विकासशील क्षेत्रों में यह 5वें नंबर पर रहा। दक्षिण एशियाई देशों में इसे सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक निवेश वर्ष 2019 के दौरान भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तकनीक और निर्माण उद्योग को प्राप्त हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत का विशाल बाजार विदेशी निवेश को आने वाले दिनों में भी लगातार आकृष्ट करता रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया उदयन? देखिए मनोज, इसमें शायद अगले कुछ महीनों में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा हो सकता है नंबर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि नेचुरली आपकी बिजनेस एक्टिविटी ग्लोबली काफी अफेक्टेड हो चुकी है। पर हमारा पायदान हम गिरेंगे नहीं, हम अगर होगा तो हम उठेंगे ही।
तो नंबर शायद थोड़े से कम हो जाएं अगले 1 साल में, पर हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। और आप अगर देखें इतना कुछ फोकस कोरोना के इम्पैक्ट के ऊपर हो रहा है, पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत जो ढांचा है उसमें जुड़े हुए जो डील्स हैं, जिसके अनाउंसमेंट्स हैं, वो तो होते जा रहे हैं। अगर आप खबरों में देखें मेट्रो के बारे में बातचीत हो रही है, कहीं पे प्लांट्स लगाने के बारे में बातचीत हो रही है, वो डील्स राज्य सरकार साइन करते चले जा रहे हैं, तो वो उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। और ये जो आंकड़ा है ये हो सकता है कि ओवरऑल तरीके से थोड़ा सा गिर भी जाए, पर हम ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस हमारा महत्व जो है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास वो मजबूती है, वो पोटेंशियल है, और वो रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे पास स्किल लेबर है, कैपेबिलिटी है, और एक पोटेंशियल इकोनॉमी का है। तो ये सब कुछ कारण है जिस वजह से अगर अगले 1 साल में भी हम थोड़ा सा स्लो डाउन भी देखते हैं, वो इवेंचुअली फिर दोबारा ये पटरी पे आ जाएगी। उदयन, यहाँ पर हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम हम लेना चाहेंगे। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे हम लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के कर्ज को भी मंजूरी दी है। सबसे अधिक धनराशि भारतीय स्टेट बैंक ने वितरित की है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 8,776 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जबकि दूसरा स्थान कैनरा बैंक को मिला है। कैनरा बैंक की ओर से 1,306 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दिए गए हैं। चलते हैं शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि दोपहर कारोबार में आज बिकवाली देखने को मिले थे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंक यानी 1.13% की बढ़त लेकर 33,605 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100 अंक यानी 1.02% बढ़कर 9,914 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों में भी निवेशकर्ताओं की दिलचस्पी बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.37% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। At the stock markets, equity benchmarks today rallied more than 1%, led by index heavyweights, HDFC Twins, ICICI Bank, and Infosys amid strong cues from global equities. The Sensex, however, briefly turned negative in afternoon session after escalation in India-China border tension, but managed to recoup losses and settled 376 points or 1.1% higher at 33,605. Similarly, the NSE Nifty closed 100 points or 1% up at 9,914. In the broader market at BSE, mid-cap added 0.4% while small-cap remained flat. HDFC Bank was the top gainer in the Sensex pack, jumping around 4%, followed by HDFC, ICICI Bank, Infosys, Kotak Bank and Hero MotoCorp. On the other hand, IndusInd Bank, Tech Mahindra, Axis Bank and ITC were among the laggards. According to traders, Dalal Street was enthused by positive cues from global markets after US Federal Reserve launched a massive program to support Main Street businesses hit by the virus lockdown. The Fed announced its Main Street lending program and an emergency lifeline under which it will buy up to $750 billion in corporate bonds.
The plan is part of a massive financial backstop put in place by the bank to protect the economy from the worst of the virus crisis. Then this is a market driven by liquidity. We are seeing in the first 15 days of June there was foreign funds inflows worth 20,574 crore rupees. So which sectors are actually witnessing this inflow? Kamal, I haven't had the opportunity to go through in detail, but I would imagine that it would be your large cap and stocks, which companies which have got large market shares. Typically, in times like these, you would try and go for those kind of companies where there's a high level of revenue visibility. So even if it's a financial services or a banking stock, and I know for a fact that as an investor, I know for a fact that there's a revenue visibility is there, then those are the good bets. So that is number one. And of course, because of all the correction that happened, they suddenly became very attractive investment candidates. So Kamal, we can expect this to continue for a little while, because I think there have been today there's been data that's come in the US, and it seems that the data for retail sales has come out, and the markets are reacting positively to that. So you can expect this global Q to also work tomorrow as well, and take this momentum a little bit ahead as well. हम वैश्विक बाजारों पर साथ साथ चर्चा करेंगे, घरेलू बाजार पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अमेरिका से जो सूचनाएं मिली हैं, वहां से जो खबरें आई हैं, उनका असर दुनिया भर के बाजारों में देखा जा रहा है. तो एक बार हम वैश्विक बाजारों की ओर भी चलते हैं, उसके बाद फिर से शेयर बाजार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. नजर डालें एशियाई शेयर बाजार पर, तो वहां जोरदार तेजी देखने को मिली है. अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से बॉन्ड खरीद योजना की काफी अच्छी बहुत बढ़िया रुझान देखा गया है आज एशियाई शेयर बाजारों पर. गौरतलब है कि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्टमेंट ग्रेड अमरीकी कॉरपोरेट बॉन्ड की खरीदारी आज से शुरू हो जाएगी. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 4.9% मुनाफे के साथ आज बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.3% की शानदार वृद्धि देखने को मिली. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 2% लाभ में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.4% की बढ़त दिखी. हांगकांग का हिंगसेंग 2.4% उछाल में रहा. यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक शानदार लिवाली का सिलसिला था. अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 2.6% ऊपर चल रहे थे, जबकि जर्मनी का डेक्स 3.1% ऊपर कारोबार कर रहा था. And on Wall Street, stocks jumped yesterday following an announcement by the US Federal Reserve regarding its corporate bond purchasing program that boosted investor confidence, which had been wavering amid a spike in new COVID-19 cases. All three major US stock indexes abruptly reversed earlier losses in afternoon trading following the Fed's decision to apply an indexing approach to its secondary market corporate credit facility to create a more diversified portfolio. The Dow Jones gained 0.6%, the S&P 500 surged 0.8%, and the Nasdaq Composite climbed 1.4%. Then you bringing your attention here in the U.S. market is basically U.S. Fed's movement on bond buying program, which has pushed the stock markets all over the world. So how important is it for the whole world in the coming few days in terms of the stock market? Kamal, as you very rightly mentioned in the previous question, that it's a liquidity driven. So this is the liquidity that's being injected by buying the bonds. So and therefore they're just making sure that this whole funding issue of funding operations and whatever other funding they require, that is being done. So it's more liquidity it has been pumped,
and you can expect some of these programs to, continue. I mean, Fed to do it. But one more thing I wanted to point out, Kamal, is that you can, reasonably expect another stimulus coming in for small businesses in the U.S., which will have an equally positive effect on the markets, because the previous stimulus for small businesses where the checks were went out, that money is now running out for those small businesses in the US, and like in India, they employ a very large number of people. So since they are now running out of that money, obviously there's a little bit of a talk going on about that program coming in. So on top of this bond buying program, which is for I would imagine for larger US companies, you can expect this this new stimulus to come in for small businesses, because they seem to be running out of money from the previous one. So all in all, this is more of that liquidity pumping that you talked about. You can expect that to happen in the next couple of weeks. So that kind of further liquidity, which will be like icing on the cake for the market. Absolutely, you can expect that to happen. Of course, such developments also get counterbalanced by geopolitical and other factors that come in. But in terms of a factor that has the potential to move the markets forward and upward, this is something that one can reasonably expect, because such talks are already going on in the US. And as we know, funds from the US do play a very big role across the world. आइए नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ, 76 रुपए 20 पैसे के स्तर पर आ गया। कारोबारियों के अनुसार चीन के साथ सीमा विवाद, विदेशी कोष का प्रवाह बाहर की ओर होने तथा कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ने के कारण रुपए में आज कमजोरी दिखी है। And crude oil prices today rose, with Brent crude rising above $40 a barrel as the International Energy Agency increased its oil demand forecast for 2020. In its monthly report on Tuesday, IEA forecast oil demand at 91.7 million barrels per day in 2020, 500,000 barrels per day higher than its estimate in May's report, citing higher than expected consumption during the lockdowns. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $40.50 per barrel, while US crude prices were at $37.80 per barrel. उदयन, एक और फेडरल रिजर्व का फैसला, दूसरी ओर लॉकडाउन की प्रक्रिया, दुनिया भर में अनलॉकडाउन यानी थोड़ा थोड़ा अर्थनीति हर जगह की खोली जा रही, किस दिशा में तेल बढ़ता नजर आ रहा, इसके दाम? देखिए मनोज, दो चीजें हो रही, डिमांड मांग बढ़ रही, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिल्कुल ठप हो गई थी, आधी दुनिया बिल्कुल की इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी, और कुछ देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे अमेरिका हमारा देश है, चाहे चीन है, तो वो तो एक चीज हुई जहां पे मांग बढ़ रही है, और दूसरा सप्लाई कट्स बरकरार हैं। तो इसके वजह से जो प्राइस की जो हार्डनिंग है, एक स्तर का पाना, एक लेवल को पाना, वो होता हुआ नजर आ रहा है, और तो एक फ्री फॉल सा हो रहा था, उस पर रोक आ गई है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अब सर्राफा बाजार की ओर। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की मूल्यों में तेजी देखने को मिली है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत हुआ है। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने का मूल्य 761 रुपए बढ़ा, 48,414 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 1,308 रुपए उछलकर 49,204 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य बढ़कर $1,731 प्रति औंस पर पहुंचा। चांदी $17.49 प्रति औंस हो गई। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi affirms the economy is returning back to normalcy after the unlock, says experiences of all states will be discussed for the future roadmap against COVID-19. India receives the world's 9th largest foreign investment in 2019, and domestic equity indices climbed more than 1%. Global stocks zoom after Fed's corporate bonds buying plan announcement.
And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.